Welcome back, friends. In previous session, we were just going through marketing channels, how they play a role, how important a role played by them, and how they help us uh, to manufacturer actually in transfer of ownership of that product from manufacturer to end user. So now in today's session, we are going to see distribution strategies, which plays again crucial role because whenever we see our product, we need to think about distribution channel as well or distribution strategies as well. So it is completely depend on the nature of the product. If you are dealing with FMCG, then distribution strategy would be different. If you are dealing with consumer durables, then distribution strategy would be different. And if you are thinking about premium class product, so the strategy would be again different. So let's see distribution strategies in today's session. So going ahead, distribution strategies. So there are three distribution strategies out there. We can see those. First one is intensive distribution strategy. Second one is selective distribution strategy. Third one is exclusive distribution strategies. So let's see first intensive distribution strategy. Intensive distribution strategy actually aims to provide saturation coverage of the market by using all available outlets. Means here in this case, company always try to put their product in the each and every shop available in the geographical area. जैसे किराना दुकान हो, रिटेलिंग शॉप कोई भी हो, तो वहां पर उनका प्रोडक्ट वो रखते ही हैं. Actually, in this strategy, company always flood this market with their product. मतलब आप कहीं पर भी जाइए, आपको उनका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा. एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कोलगेट की बात अगर करते हैं, तो कोलगेट में यही होता है कि आप किसी भी दुकान में चले जाइए, फिर वो दुकान नागालैंड में हो या गुजरात में, फिर वो दुकान जम्मू में हो या तो फिर तमिलनाडु में, ये देयर यू विल गेट कोलगेट. उसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट जिसको हम लोग एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कंसिडर करते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको हर एक दुकान में मिलता है. लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी के स्ट्रेटेजी के ऊपर, कंपनी के बजट के ऊपर और कंपनी के प्लान के ऊपर. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई लोकल चिप्स बनाने वाला जो बंदा है वो उसको अफोर्ड करे. हो सकता है कि वो लिमिटेड एरिया में ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलवाए, वहीं पर वो प्रोडक्ट बेचे. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट कोलगेट पामोलिन पामोलिव और we talk about HUL, Procter and Gamble, ITC, then you will find their product in every available outlet in the नेशन. तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. तो कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अगर घर पे जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पेप्सोडेंट घर पे अगर यूज करते हैं, तो वहीं अगर आप घर छोड़ के कहीं और किसी गांव चले जाते हो हॉलीडेज के लिए, तो वहां पर भी आप अगर जाते हो और आपको अचानक याद आता है कि यार मैं टूथपेस्ट भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो आप अगर पास के दुकान में जाते हैं, वहां पर अगर आप पेप्सोडेंट मांगते हो, तो वो आपको पेप्सोडेंट निकाल के देता है और उसी दुकान में से आप वो प्रोडक्ट लेते हो, यूज करते हो. और वह उस जगह से अगर आप किसी भी जगह पे चले जाओ हॉलीडेज के लिए या कहीं पर भी घूमने के लिए या बिजनेस ट्रिप के लिए, तो आपको पेप्सोडेंट हर जगह पे मिलता है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोवाइडर और द सेलर एक्चुअली goes for intensive distribution strategy. Actually, they flood all the market with their product. For example, these are FMCG. कोलगेट की हम लोग अगर बात करते हैं, या तो फिर यहाँ पर HUL की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सर्फ एक्सेल है, लिप्टन है, रेड लेबल है या लक्स है, ये हर जगह पे आपको अवेलेबल होगा. लेट्स सी सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी. सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी में होता ऐसा है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर जो होता है वो सेलेक्ट करता है.
Selective distribution involves a producer using a limited number of outlets in a geographical area to sell a product. For example, if we think about Gucci or Rado or Rolex, they select their distributors, they select their retailers. वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में अपना एक रेडियस फाइनल करते हैं, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या जो भी किलोमीटर जो कंपनी के हिसाब से चलता है वो. सो दे थिंक अबाउट पर्टिकुलर रेडियस, और उस रेडियस में सिर्फ एक ही बंदा हमारा होगा जो हमारे प्रोडक्ट के साथ में डील करेगा, जिससे क्या हो जाता है कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी अच्छा कंट्रोल कंपनी का होता है. दूसरी चीज, हमेशा जो भी होल सेलर हो, रिटेलर हो या डीलर हो, उसको कंट्रोल करना और उससे सर्विस कस्टमर को अवेलेबल करवा के देना, ये काफी आसान जाता है. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे गो फॉर सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी. फिर वो सोनी हो, सोनी का टेलीविजन आप देख सकते हैं कि काफी सेलेक्टेड स्टोर पे वो मिलता है, वैसे फिलिप्स का होता है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. सो आई हैव put some examples here like Prada, Rolex, Gucci. They select their distributor, wholesaler and retailer, and then they uh, try to sell or keep selling their product in the particular geographical market. So after this, let's go for exclusive distribution strategy. Exclusive distribution is an extreme form of selective distribution in which only one wholesaler, retailer or distributor is used in a specific geographical area. It is self-explanatory definition actually. यहां पर हमें समझ में आता है कि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ये सबको पता है. तो यहां पर कंपनी क्या करती है, वो एक्सक्लूसिवली एक ही होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनलाइज करते हैं और वो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में उसको वो अपॉइंट करके रखते हैं और वो उनको ही अलाउ करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड को बेचने के लिए. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि दे विल बी द मिडल मैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर एज फार एज हाईली प्रीमियम प्रोडक्ट आर कंसर्न. तो ज्यादातर ऐसी कंपनीज जो प्रीमियम प्रोडक्ट में डील करती हैं, वही कंपनीज इसके लिए चली जाती हैं, ये ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं, दे अडॉप्ट फॉर दिस स्ट्रैटेजी. इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर होते हैं, जो उन्होंने एक्सक्लूसिवली फाइनल किए होते हैं, अपॉइंट किए होते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान जाता है. एट एनी टाइम दे कैन कॉन्टैक्ट देम. उसके बाद में दे कैन कन्विंस टू देयर रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर टू गिव हेल्दी, साउंड एंड गुड सर्विस टू द कस्टमर. तो यहां पर कंपनी इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को अपनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी. सो आई हैव कोटेड वन एग्जांपल, लैम्बोर्गिनी. लैम्बोर्गिनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हाईली प्रीमियम प्रोडक्ट है, कार, व्हीकल्स, और काफी सारे लोग इसके बारे में सोचते हैं कि यार अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक बार लैम्बोर्गिनी लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग इसके ड्रीम करते हैं. तो अभी लैम्बोर्गिनी इफ यू वांट टू परचेस देन यू हैव टू गो टू मुंबई. सिर्फ मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में ही उनका एक डीलर रहेगा. वहां से ही वो अपने सारे लैम्बोर्गिनी के जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो डील करेगा, वो सेल करेगा और वही सर्विस देगा. इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी. इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट. अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑल द स्ट्रेटेजीज आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम लोग किस प्रोडक्ट में डील करने जा रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम ये स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. थैंक यू. बाय बाय.